इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी कमान के कमांडर एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने बताया कि अब सेना में पहले की तरह जवानों की रिक्रूटमेंट रैली नहीं होगी, अब अग्निवीर ही भारतीय सेना में सैनिक बनेंगे। उन्होंने ये घोषणा की कि 4 साल के सेवा काल के दौरान अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले अग्निवीर को ही सेना में रेगुलराइज किया जाएगा। बुधवार को जम्मू में एयर मार्शल ने बताया कि अग्निवीर की रिक्रूटमेंट अब पूरे देश में एक साथ हुआ करेगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट में कामयाब युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों में से करीब 25% को सेना में रेगुलराइज किया जाएगा। इस योजना को लेकर विभिन्न वर्गों द्वारा जताई जा रही आशंका से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई स्कीम लागू होती है या कोई बदलाव होता है तो हलचल होती है, आलोचना जरूरी है। इस योजना को करीब 2 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जा रहा है। हर एक की इस विषय पर अपनी राय हो सकती है। मेरी राय में ये बहुत ही व्यवहारिक, प्रभावकारी और आदर्श योजना है। अग्निपथ योजना देश में कौशल मानव संसाधन भी उपलब्ध करवाएगी। As far as his, comments are concerned. Okay, everybody has a right to make their own comments. In any issue, when there is a change in life in general, there is always going to be some hiccups. हलचल तो होगा ही जब भी हम कुछ चेंज करते हैं, but I'm sure you all agree with me that there is only one constant in life and that is change. And even ये जो अग्निपथ स्कीम है, it is not something which is suddenly come out of the blue. हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सीनियर ऑफिसर्स, very many people, they have been discussing this 1 साल से ऊपर, शायद 2 साल तक, और उसको फाइनली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, and they have said yes, it's a good idea, why don't we implement it? Of course, कोई भी स्कीम में pros and cons तो होगा ही, so we have taken all these cons, we have considered all that. But we feel overall it's a wonderful scheme which will help the services in the long run. And जो मैंने पहले बोला था that this worry कि आपने लोगों को ट्रेन करके 4 साल के बाद they might become as what you said. I do not agree to that. I think there will be better citizens. There will be more responsible citizens, and there will be more aware citizens. And they will do much better for the country. And there will be pros, there will be cons. Actually, criticisms are welcome because it will, and this is a new scheme which has been rolled out, and I'm sure as it moves forward, there could be minor changes here and there. It's possible. So I'm not saying what they are saying is wrong, but I'm saying what I think is right. So I leave it at that. Will be the response of the regular so far as interpretation is concerned, where the 17 to 18, 21 international lines of whether it will stop radicalization or not, I cannot answer now till the scheme is implemented, and only time will tell us that. But I am quite sure that if a youngster who has, as you said, has been brainwashed, if he were to join the services and spend 4 years with us, when he leaves forge after 4 years, I am sure he will be a different person and probably more of an Indian than a radical as we were. Can we move to the next question, please? We should give the left side also some chances. Kindly raise your hands for asking the questions, and also introduce yourself for asking the question. Media persons are please welcome. Please start from yourself. Yes, Rajat, please. सर पंकज शर्मा न्यूज़ 24। सर ये जो अग्निपथ स्कीम है 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 4 साल के बाद जब युवा घर जाएंगे उन्हें रेगुलराइज करना आसान होगा, गलत काम में जा सकते हैं? No, you see, the Agnipath scheme is for 4 years. What you said is correct. It's limited only for 4 years. But I do not think that they will go back और वो कोई गलत काम करेंगे, क्योंकि
फौज में सबसे पहले लोग फौज क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि कोई भी यंग लड़का 17 साल 18 साल 19 साल का ज्वाइन करता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग हमारे पास होता है, 3-4 साल जब वो रहेगा हमारे साथ, तो जो मिलिट्री का इथॉस है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स का इथॉस है, वो उसमें आ जाए। सो आई डोंट थिंक कि वो 4 साल के बाद जब बाहर सिविल स्ट्रीट में जाएगा तो कोई गड़बड़ करेगा। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि ही बी अ मच बेटर सिटीजन। सो फॉर द सिविल साइड आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्रोपोजिशन। 4 साल फौज में रहने के बाद अगर वापस सिविल स्ट्रीट में इस तरह से आपने बताया कि आप जितने भी बच्चे आगे आएंगे उनको 25% को आप जो बेस्ट उनको ले जाएंगे। सर मैं सोचता हूँ कि आपके जो ऑफिस ट्रेनिंग देंगे, कैसे लीडरशिप में काम करेंगे, वो 100% बच्चे जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। तो फिर 25% क्राइटेरिया देने की कोशिश है, बिकॉज हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आर्मी में, एयरफोर्स में। तो क्या कुछ ऐसा ना किया जाए ताकि जो बेस्ट हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए उसके ऊपर जितने भी हैं उन सबको भी ले लिया जाए, ना कि 25%। देखिए अभी ये नई स्कीम अग्निपथ इज न्यू स्कीम। सो बेस्ड ऑन वेरियस कंसिडरेशंस व्हिच आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ, बट लॉट ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलके काफ़ी सोच समझ के ये स्कीम निकाले। तो आगे चेंजेस होगा या नहीं हम नहीं अभी नहीं कह पाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि यू आर राइट कि अभी भी फौज में हम देखते हैं कि मुश्किल से लोग ज्वाइन करते हैं, एक वैकेंसी के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं। यस, सो दे आर ऑल गुड, बट वंस दे ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं कई ऐसे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड किसी स्पेशली एयरफोर्स में, जहाँ पे काफ़ी टेक्निकल, ज़्यादातर मतलब टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, तो किसी का एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम तो वही चाहेंगे ना कि जिसका एप्टीट्यूड ज़्यादा हो, जो आगे का टेक्नोलॉजी भी इवन मोर डिफिकल्ट ऑल्सो, जो कर पाए, तो हम उन्हीं को रिटेन करना चाहेंगे। एंड आई एम श्योर इन लेटर टाइम अगर कोई शॉर्टेज पड़ गया तो मे बी द गवर्नमेंट विल हेल्प अस आउट। दैट कैन नॉट बी सेड नाउ। Youth after the period of 4 years for regular basis cadre, but I have followed up. Yeah, I think this was a question which was debated whether when you induct somebody for 4 years, will he have a high morale? Will he be motivated? I have no doubts, because from what I see, जब भी हमारे जो रैलीज होते हैं, जब भी हम एयरफोर्स में इंडक्शन करने जाते हैं, हर एक वैकेंसी के लिए 100, 200, 300 लोग आते हैं। मतलब मोटिवेशन लेवल्स कभी हमने कम नहीं देखा है। और आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर देखिए, यंगस्टर्स हु जॉइन, दे जस्ट हैव टू बी गिवन द करेक्ट डायरेक्शन, एंड आई एम श्योर दे आर नॉट थिंकिंग कि 1 साल की बात है या 10 साल की बात है या 20 साल की बात है। इफ दे आर गिवन द करेक्ट डायरेक्शन बाय हूम, बाय द ऑफिसर्स, बाय द सुपरवाइजर्स, by the leadership. If the leadership is good, they will turn out to be good, whether they are here for 2 years, 4 years or 10 years. And let me tell you, from the young officers I have seen, from our warrant ranks that I have seen, from our senior sergeants I have seen, I have full confidence that we have the right leadership in place to guide these youngsters. And आप देखिए, whether it is Kargil war or go back to world wars, the soldiers who really performed with hardly any service, 3, 4, 5, maybe 6 years service, but they did not say कि हम तो इतने साल के हैं कि हम आगे क्यों जाएं। तो I have no doubt, अगर फौज भर्ती हो रहा है देश के नाम से, वो 2 साल हो या 3 साल हो, वो करेगा जो करना है।
आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।